So, welcome to my YouTube channel Visual Coding. Dear students, as you know that CBSE has divided syllabus into term 1 and term 2. So, I am beginning with the term 2 syllabus. Term 2 syllabus is, as per the CBSE, term 2 syllabus is again total marks 35. So, you have quite easy syllabus as compared to the first term. So you have computational thinking and programming. Thinking and programming. This is the name of unit that CBSE has defined, is of 5 marks. Okay. So here basically we will learn about the data structure, that is stack, which they have given a very small portion. This is first unit. Second unit which they have given is the computer networks. So it is given computer network. This complete unit computer network is of theoretical type. So you will learn about different types of network. You might have learned these things in somewhere in junior classes also. Like local area network, wide area network. You will learn about the types of topologies and the various connecting media, about modem, about router, hub, switch. So it's completely theoretical but very easy, very common topics are there, and it's nothing new for you in this unit. And the third, which is very easy, that's the database management. And as a 20 marks of content. So this 20 marks of content, child, this is so easy. And when you will learn about database management, basically you will learn the MySQL concept here, which is quite easy. And this is a new unit for you, but it is quite easy. And major contribution out of 35, 20 marks from the database management. So scoring higher marks in term 2 will be quite easy. It makes total 35. So same here, 15 marks for your exams and 35 marks for your theory exam, makes 35 total, right? Plus 15 equals to 50, right? Okay, so I'll begin with the syllabus with the unit 1, that is computational thinking and programming. So basically the data structure part I'm going to begin with you. So this complete is for the class 12 student, those who are going to take part in AISSCE, All India Senior Secondary Certificate Examination, which will be somewhere in the month of March and April. Fine. Okay. So beginning with the data structure, unit 1 as per the term 2 syllabus. Data structure. So what is data structure? This is common term, comes whenever we deal with the programming. Data structure, देखो, if
वी सी द नेम, अगर हम सिंप्लीफाई करके पढ़ें तो डेटा स्ट्रक्चर मीन स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। थोड़ा सा डीप में जाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ वेल डिफाइंड डेटा। तो हम क्या कह सकते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, एक तो ये हो गया, पॉइंट वाइज लिखेंगे ये इजी रहेगा। विद, collection of data with, okay, some well defined operations, and properties। इज इट क्लियर? बहुत आसान सी बात है, कलेक्शन ऑफ डेटा है, बिकॉज बहुत ह्यूज पोर्शन ऑफ द प्रोग्रामिंग डील्स विद द डेटा ओनली। और होता क्या है, देखो हर तरफ डेटा वॉर है, बिग डेटा, देयर इज अ टर्म गोइंग ऑन ऑल अराउंड। तो हमें उस अमाउंट ऑफ डेटा को मैनेज करना है, उसको वेल डिफाइंड वेल स्ट्रक्चर फॉर्म में मैनेज करना है, सो दैट इट कैन बी यूटिलाइज इन अ प्रॉपर वे फॉर यूज़र, वो यूज़र को प्रोवाइड हो सके। तो हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर की। तो डेटा स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टैक है, क्यू है, लिंक लिस्ट होती हैं, और भी चीज़ें हैं। बट इन योर सिलेबस देयर इज़ अ टर्म स्टैक। तो आप लोग यहाँ पे केवल पढ़ोगे स्टैक के बारे में, क्यू और लिस्ट आपके सिलेबस में फ़िलहाल नहीं है, एंड आई एम फोकसिंग योर सिलेबस ओनली। बट या I will explain all these topics later on. Okay, first I am focusing to all those students, those who are going to appear in term 2 exam, because मुझे बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि I should start with the term 2 syllabus. Right. So stack की बात आती है। stack क्या है? It's a way to implement data structure। ठीक है, ऐसा स्टैक जैसा कुछ है नहीं उसके अंदर। स्टैक मैकेनिज्म का नाम है, इट्स अ मैकेनिज्म, इट्स अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ओके, स्टैक इज अ, so you say stack is a linear structure. Linear means one after another. Linear data structure है which follow LIFO, हम कहते हैं इसे लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है भैया, लास्ट में आया और सबसे पहले बाहर चला गया। लास्ट इन फर्स्ट आउट मैनर टू डील विद डेटा। हम सिंपल सी बात करते हैं, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट सबसे। अब देखो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके चलते हैं कि ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पर लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। ये सारा चीज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम धीरे धीरे इन चीज़ों को समझेंगे। लास्ट इन फर्स्ट आउट, देखिए हम सब लोग शादियों में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, बहुत सारी प्लेट्स रखी होती हैं। तो मान के चलो कि ये कुछ बुक्स हैं या प्लेट हैं, आप जैसे भी मान के चलो। ओके, 1 2 3 4 5 6।
तो ये क्या है बेटा, ये एक ढेर है, ठीक है। ये प्लेट्स का ढेर मान लीजिए आप, चाहे बुक्स का ढेर मान लो। तो ये बुक देखो, 1 2 3 4 5 6 बुक्स रखी है हमने। तो हम जब उठाएंगे, अगर हम मैरिज में जाते हैं, प्लेट जब उठाएंगे तो मैनर ये कहता है कि टॉप मोस्ट प्लेट सबसे पहले उठाई जाएगी, यानी कि उस प्लेट को जो सबसे लास्ट में रखी थी, राइट, जो प्लेट सबसे लास्ट में रखी थी उसको सबसे पहले उठाया जाएगा। तो क्या हुआ, ये प्लेट लास्ट में आई, लास्ट इन, है ना, और कब आउट हुई, फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये मैकेनिज्म हमारा स्टैक फॉलो करता है, ओके। लास्ट इन LIFO। तो जैसे क्यू भी एक, इट्स अ काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। क्यू में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देखिए लाइन में जो सबसे पहले आता है टिकट, उसको सबसे पहले मिलती है, वो वही लाइन से सबसे पहले बाहर निकलता है जो सबसे पहले आया हो। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कंसेप्ट है। सो दिस इज स्टैक फॉलो लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑप्शन। I hope this example is clear to you. Okay, तो कुछ लिस्ट में, स्टैक में हम कुछ टेक्निकल टर्म इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग फॉलो करते हैं। सो वी विल सी वन बाय वन द इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्टैक। सो स्टैक टर्म्स, स्टैक में क्या क्या टर्म्स हैं देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आएगा द वेरी फर्स्ट ए, आई एम गिविंग नेम पॉप, POP, ठीक है। POP देखिए क्या होता है, एग्जाम्पल समझते हैं हम। पॉप मैंने, आई होप यू नो, रिमूवल एलिमेंट, ओके, रिमूवल और डिलीशन, हम डिलीशन भी कह देते हैं। रिमूवल और डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट, फ्रॉम द स्टैक में डिलीशन कहाँ से होगा, टॉप से, ठीक है। फर्स्ट आउट मतलब डिलीशन है, तो कोई एलिमेंट जो डिलीट होगा वो कहाँ से होगा, टॉप। तो रिमूवल या डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस स्टैक। तो किसी एलिमेंट को जो हम टॉप से डिलीट कर रहे हैं उस टर्म का नाम पॉप है। तो फिलहाल डिलीट मैंने पॉप, ओके, वेरी इजी टर्म्स। बी पार्ट, पुश, ये कैपिटल नहीं लिखने हैं, ये आपको केवल वीडियो में साफ दिखे, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग कैपिटल। पुश, पुश ऑपरेशन, हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टैक टर्म, स्टैक ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं हम। तो पुश क्या है, एडिशन ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। एडिशन या इंसर्शन, हम कुछ भी कह सकते हैं, एडिशन और इंसर्शन, आप इंसर्शन भी कह सकते हैं, इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट, ओके, इंसर्शन एंड एडिशन। अच्छा, इंसर्शन कहाँ से होगा, अगर मुझे कोई प्लेट इस ढेर में रखनी है तो वापस से मैं कहाँ रखूँगा, टॉप में ही रखूँगा। तो एडिशन भी टॉप में होगा और डिलीशन भी कहाँ पे होगा, टॉप से ही होगा। तो ऑफ एन एलिमेंट एट द टॉप, एट द टॉप ऑफ द स्टैक। क्लियर, सीधी सी बात है। अगर हमें
यहाँ पर सीधी सी बात है, जब हम एक एलिमेंट को ऐड करते हैं तो हम उसे पुश कहते हैं। वो एडिशन स्टैक में केवल टॉप में होता है, इट हैपन एट द टॉप ओनली। नाउ सी पार्ट, दिस इज द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म है ओवरफ्लो। देखो बेटा, नाम बता रहा है ना, ओवरफ्लो क्या है? ओवरफ्लो, भाई आपने एक स्टैक डिफाइन किया जिसका साइज था 5। अब आप उसमें और एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं। ऑलरेडी 5 सीट फुल हो चुकी है। ग्लास में आपने पानी भरा हुआ है, आप दोबारा से उसमें पानी भर रहे हो, क्या होगा? वाटर ग्लास ओवरफ्लो कर जाएगा। और एनी वेसल विच यू टेक टू fill up the water, that will spill out, the water will overflow। तो नाम देखिए यहाँ पे, द टर्म विच आर गिवन इन द प्रोग्रामिंग, अगर आप उसको डेली लाइफ से कोरिलेट करेंगे, देन यू नीड नॉट टू मग अप एनी एग्जाम्पल, मग अप एनी टर्म। ये हमारे डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो ये ओवरफ्लो एक्चुअली एक एरर सिचुएशन है जहाँ पे यूज़र क्या है, ट्राई करता है एक न्यू एलिमेंट इंसर्ट करने की, पर जगह है ही नहीं। सो जगह फुल। ओके, तो क्या होगा? इट अकर कब होता है? इट अकर व्हेन the size of stack is fixed। ठीक है, पहली बात है, when the stack is fixed and no element, और we can say no memory left। सीधी सी बात है, हम सीधी शब्दों में लिखते हैं ना, no memory left to add any element। ठीक है, जगह ही नहीं बची। सो इट इज़ एन एरर सिचुएशन। इट इज़ एन, हमको मैं कैपिटल में लिख देता हूँ, एरर सिचुएशन है। बहुत सिंपल सी बात है, जगह है ही नहीं। आप इस एग्जाम्पल को याद रखिए, जगह नहीं है और हम पानी भरना चाहते हैं ग्लास में, ओवरफ्लो सिचुएशन आ गई। फाइन, ओके फाइन। तो ओवरफ्लो के बाद जो नेक्स्ट हमारा टर्म है, दैट इज़ कॉल्ड अंडरफ्लो। देखिए फिर से नाम बहुत क्लियर है, अंडरफ्लो। अंडरफ्लो की सिचुएशन कब आती है? जब आप पानी पीना चाहते हैं और ग्लास में पानी है ही नहीं। आई एम गिविंग यू वेरी सिंपल एग्जाम्पल। पानी पीने का मन है और ग्लास में पानी नहीं है। सो दिस इज अंडरफ्लो सिचुएशन। इट मीन्स आप किसी एलिमेंट को रिट्रीव करना चाहते हैं, यू वांट टू डिलीट एनी एलिमेंट, बट वो एलिमेंट वहाँ पे है ही नहीं। सो दिस इज कॉल्ड अंडरफ्लो सिचुएशन। तो हम कहेंगे ये भी एक एरर सिचुएशन है। ओके, दिस इज एन एरर सिचुएशन। सो इट occur when you want to delete elements from a stack which has currently
नो एलिमेंट्स। आप डिलीट करना चाहते हैं पर कोई एलिमेंट है ही नहीं उसमें। आप पानी पीना चाहते हैं, पानी नहीं है उसमें। सो दिस इज कॉल्ड अंडर फ्लो सिचुएशन। और ये भी एक क्या है, इट इज ऑल्सो एन एरर सिचुएशन। ये भी कैसी है, एरर सिचुएशन है। ठीक है, बहुत सिंपल एग्जांपल दिया, वाटर ग्लास याद रखना। हम ओवरफ्लो क्या था, पानी फुल भरा हुआ है, आप और भरना चाहते हैं, वाटर गेट स्पिल आउट फ्रॉम द ग्लास, ओवरफ्लो। अंडरफ्लो, you want to drink water but there is no water on the glass, in the glass, sorry. So underflow situation. There is last term lap is known as peak. बहुत सिंपल सी बात है, पीक मने टॉप होता है, हम सर्च कर रहे हैं उसके पीक को। सिंपल सी बात है, वैल्यू और इंस्पेक्टिंग और सर्चिंग द वैल्यू ऑफ स्टैक स्टॉप। मैं सर्चिंग या इंस्पेक्टिंग। वैल्यू ऑफ स्टैक्स टॉप। ठीक है, इंस्पेक्शन भी हम इसे कह देते हैं, पीक हम उसका टॉप पता करना चाहते हैं। सो दिस इज देर आर दीज आर द टर्म्स ऑफ स्टैक। बहुत बहुत इजी सी टर्म्स हैं, है ना। पुश in adding an element is known as push. Removing of an element is known as pop. When there is no place to add an element, we say overflow. When there is no element left and we still want to delete, underflow. And peak is inspecting the top value of the stack is known as the peak. Fine. तो ये हमारी कुछ टर्म्स थी स्टैक को लेके। फाइन। सो स्टैक की एप्लीकेशंस यानी कि यूजेस अगर हम बात करें तो वो कहाँ होता है, क्या ज़रूरत है। देखो बेटा, स्टैक का बहुत बड़ा यूज़ है इन गेमिंग, इन कैलकुलेशंस। बिकॉज कंप्यूटर क्या है, इट्स अ मशीन। कंप्यूटर को जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे इट विल वर्क अकॉर्डिंगली। सो स्टैक इज़ अ मैकेनिज्म टू डिज़ाइन द कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल सिचुएशंस। बहुत बहुत बड़ा यूज़ है इसका, स्पेशली मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो होते हैं उनको सॉल्व करने में इसका यूज़ आता है। विल कम वन बाय वन टू इट। सो दैट कम्स अंडर अ टर्म कॉल्ड पॉलिश स्ट्रिंग्स हम आएंगे, एंड वी विल लर्न अबाउट द पोस्ट फिक्स एंड प्री फिक्स नोटेशंस ऑफ एक्सप्रेशंस। तो ये क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, और वन श्योर क्वेश्चन पोस्ट फिक्स एंड प्री फिक्स का एग्ज़ाम में आता है, विच आई एम गोइंग टू टीच यू, डोंट वरी अबाउट इट। तो सबसे पहले एक टर्म हम पढ़ते हैं, पॉलिश। ठीक है, ये बात यहाँ ओवर हो गई। एंड वी विल ऑल्सो लर्न टू डिज़ाइन अ प्रोग्राम इन पाइथन बेस्ड ऑन द स्टैक। ठीक है, तो मैं पहले आपको पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स नोटेशन और वो न्यूमेरिकल जो एग्ज़ाम में आता है दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, एंड आफ्टर दैट वी विल स्विच ओवर टू द पाइथन, और हम लोग फिर वो स्टैक का प्रोग्राम भी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो देयर वाज अ मैथमेटिशियन, his name was Lucas Wiz. Okay, Lucas, W-I-C-Z। एक पॉलिश मैथमेटिशियन था ल्यूकास विज, जे ल्यूकास विज। He devised a terminology, a notation to solve the mathematical expressions
यूजिंग प्रोग्रामिंग। सो ये नाम याद रखना, हमें पता होना चाहिए। वो मैथमेटिशियन था जिसने टर्मिनोलॉजी इन्वेंट करी टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, टू यूज पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स नोटेशन। प्रीफिक्स नोटेशंस का इसने इन्वेंशन किया था, ठीक है, ल्यूकास विज। तो देखिए कैसे हम समझते हैं पोस्ट फिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है। इसको बहुत इजी टर्म में हम समझते हैं। सपोज इनफिक्स देखिए आप पहले। इनफिक्स, हम एक नॉर्मल टर्म को इनफिक्स कहते हैं। जो आप नॉर्मल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं दैट इज नोन एज इनफिक्स। सपोज एक्स प्लस वाई, एक बहुत ही सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है एक्स प्लस वाई। अब अगर हम इसको प्रीफिक्स बनाएं तो प्रीफिक्स का मतलब क्या है? प्रीफिक्स, प्री मीन्स पहले, जो पहले आता है उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। तो ऑपरेटर, यहाँ पर सारी कहानी हमको पता है। ए एक्स और वाई क्या है? एक्स कॉमा वाई बेटा क्या है आपको पता है? ऑपरेंड्स। ओके, और प्लस क्या है? प्लस इज एन ऑपरेटर, ठीक है। तो ऑपरेटर एंड ऑपरेंड, तो ये कैसा है? बाइनोमियल बाइनोमियल ऑपरेटर, क्योंकि इसको बाइनरी, दो ऑपरेंड चाहिए, ठीक है, यूनरी एंड बाइनरी। तो ये बाइनरी है प्लस हमने यहाँ पे दो ऑपरेंड है। प्रीफिक्स में क्या होगा कि द ऑपरेटर विल कम फर्स्ट एंड देन एक्स वाई, क्योंकि कंप्यूटर को सॉल्व करने के लिए दो ऑपरेंड और एक ऑपरेटर की ज़रूरत होती है। दिस इज कॉल्ड प्रीफिक्स नोटेशन। और अगर हम बात करें पोस्ट फिक्स की, तो पोस्ट फिक्स हो जाता है ठीक इसका अपोजिट। पहले ऑपरेंड आएंगे एंड देन प्लस। पोस्ट मैंने बाद में, प्री मैंने पहले। तो ये नोटेशंस डेवलप करती ल्यूकास विज ने, एंड देन दैट इज नोन एज द पॉलिश स्ट्रिंग्स। ओके, पॉलिश स्ट्रिंग्स। कुछ और एग्जांपल देते हैं हम इनफिक्स एंड प्रीफिक्स का। इनफिक्स टू प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स, तो देखो कुछ और एग्जांपल हैं। जैसे चलिए थोड़ा सा हम इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। इनफिक्स से एक्स माइनस वाई इंटू जेड। ये एक्स है माइनस वाई इंटू जेड, ठीक है। अब इसका प्रीफिक्स कैसे बनेगा? देखो बेटा, प्रीफिक्स, सो प्रीफिक्स क्या हो जाएगा हमें समझना है। देखो इजी वे, प्री मैंने पहले जो आएगा पहले, तो हम इसे सॉल्व करें। एक्स वाई माइनस ब्रैकेट, इजी वे बता रहा हूँ आपको मैं सॉल्व करने का, इनटू जेड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप यही लिख देते हैं। नाउ देखो अभी ये एक ऑपरेटर ऑपरेंड और ये सेकेंड ऑपरेंड। अब आपको इसे एक ऑपरेंड मानना है, इसे सेकेंड ऑपरेंड, तो ये मल्टीप्लाई साइन आगे जाएगा। सो फाइनली इट विल बी मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई जेड। इज इट क्लियर? देखो एकदम ये मल्टीप्लाई का साइन है, आप कंफ्यूज ना होए इसमें एक्स और मल्टीप्लाई में, ठीक है। अगली बार हम कुछ और सिंबल ले लेंगे। और पोस्ट फिक्स अगर हम देखें, पोस्ट फिक्स नोटेशन, इसी की पोस्ट फिक्स देखते हैं। फिर से वही करिए, एक्स वाई माइनस इंटू जेड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई माइनस जेड इंटू एक ऑपरेंड
2 ऑपरेंड। जल्दी से एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, एक और एग्जाम्पल को हम देखते हैं। आज मैं नंबर ये चेंज कर देता हूँ, आपको समझने में इजी रहेगा। से थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं अब हम। a प्लस बी डिवाइड बाय c माइनस डी, ये लेते हैं। ए बी सी डी में कोई गड़बड़ नहीं आएगी। तो ये है इनफिक्स। अब इसका प्रीफिक्स क्या होगा देखिए, ठीक है, ये इनफिक्स है, इनफिक्स। अब इसका प्रीफिक्स बनाते हैं। प्रीफिक्स देखो बेटा क्या आएगा, आपको मैं इजी वे बताता हूँ। प्री, इसको यहीं पर कर दीजिए, प्लस ए बी डिवाइड बाय माइनस सी डी, ठीक है, ब्रैकेट। अब आपके पास एक ऑपरेंड ये है, दूसरा ऑपरेंड ये है, और ऑपरेटर है फॉरवर्ड स्लैश यानी कि डिवीजन। ठीक, तो क्या हो जाएगा देखिए, इस ऑपरेंड को आपने यहीं रखना है, ऑपरेंड 1, सेकेंड ऑपरेंड, और ये ऑपरेटर उठ के आगे आ जाएगा, ये इसका प्रीफिक्स। ठीक है, इट्स क्वाइट सिंपल। अब इसी को हम पोस्ट फिक्स में चेक करते हैं। पोस्ट फिक्स देखिए, पोस्ट फिक्स क्या होगा, आप फिर से टेक्निक वही रखनी है, ए बी प्लस कर दीजिए, ए बी प्लस, ए बी प्लस, पोस्ट है बाद में आएगा ना, डिवाइड बाय सी डी माइनस, सी डी माइनस। ओके, तो एक ऑपरेंड, 2 ऑपरेंड, ऐसे ही लिखो ऑपरेंड को, ए बी प्लस सी डी माइनस, और ये डिवाइड सिंबल उठ के लास्ट में आ गया। तो ये आपका प्रीफिक्स, ये पोस्ट फिक्स। ठीक है, ये कन्वर्जन पे बेस्ड एक्सरसाइज आपके एग्ज़ाम में आती है। एंड on my next video we will learn about how to solve these postfix and prefix notations, जिसका शॉर्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। CBSE ने कुछ सैम्पल पेपर्स भी रिलीज़ किए हैं, we will discuss those sample paper also. So let us quickly finish up first of all the सिलेबस पोर्शन, और उसके बाद फिर हम सैम्पल पेपर भी डिस्कस करेंगे। सो होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।